براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ ممکن کیا کہ اس شو کے وسیلہ سے پھر آپ کے ساتھ بات کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں انسانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، اور انسان کرونا وائرس اور دیگر اس سے متعلقہ مسائل جن کا وہ شکار ہیں، مثال کے طور پر ٹڈیاں ہیں، قحط ہے، ویکسینیشن بنانے کی جستجو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بے روزگار لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ مزدور اور غریب لوگ جن کے پاس خوراک کی کمی ہے، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو ہاسپٹلز تک پہنچنے کے لیے اور ادویات تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسی دنیا جس میں تقریباً زندگی گھروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ شو ہم گھر سے ریکارڈ کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے کہ خدا ذرائع مہیا کرتا ہے تاکہ اس کے کلام سے جو آج ہمارے لیے تربیت کی بات، رہنمائی کی بات، تسلی کی بات، زندگی کی بات، الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے حل، وہ اس کے کلام سے ہمیں ملتا ہے۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ٹیم کے لوگ مختلف طرح سے مددگار ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اب یہ شو مسلسل ہم کوشش کریں گے کہ ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچتا رہے، اور پھر کوشش ہوگی خداوند کے فضل سے کہ جو ہی ممکن ہوگا یہ لائیو شو بھی ہم کریں گے۔ لیکن آج آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا اس تمام صورتحال میں جب دنیا کے وہ رہنما جو اس دنیا کو چلانے والے ہیں، جن میں سیاسی رہنما بھی ہیں، جن میں مذہبی رہنما بھی ہیں، جن میں سماجی رہنما بھی ہیں، اور عوام جو اس وقت پوری دنیا میں عام لوگ ہیں، سب الجھاؤ کا شکار، کہیں نہ کہیں سے فکر مندی، پریشانی، نا امیدی، مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں خدا کیا سوچ رہا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ خدا پوری دنیا کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم دنیا کے جو معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں، مختلف جو میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں، مختلف جو سیاسی رہنما ہیں، جو سماجی رہنما ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، وہ اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن جو خدا کے دل کی بات ہے، جو خدا کے ذہن میں، اس کی سوچوں میں آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اس دنیا کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے، کیا آپ اس راز کو، بھید کو، الہام کو، کلام کو جانتے ہیں؟ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس وقت سب سے اہم اور بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ خدا کی ذات اور اس کے کلام سے شخصی طور سے واقف ہوں۔ خدا کا بندہ یرمیہ، میرے مسلمان بہن بھائی ان کو ارمیہ کے نام سے جانتے ہیں، خدا نے مختلف ادوار میں جب انسان مختلف مسائل سے گزرے،
मिसाल के तौर से खुदा की नाफरमानी करके खुदा से दूर हो गए, या उन्होंने अपनी दिल की राहों और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिंदगी के लिए तर्ज हयात के असूल बनाए और उन पर कारबंद हो गए। जब बुत परस्ती बढ़ी, जब इंसान परस्ती बढ़ी और इंसानों को मुख्तलिफ हौलनाक तबाही, बर्बादी, बीमारियां और वबाओं का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त खुदा की आवाज जो इंसानों तक पहुंची, उसका जरिया अंबिया कराम थे। तो आज मैं शुरू में ही आपके सामने तमाम इंसानों के लिए, चाहे आप मसीही हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, जो खुदा ने राज खोला, जो खुदा ने भेद की बात हम तक पहुंचाई है। आप शायद मुख्तलिफ कुतुब पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अलूम से वाकफियत रखते हैं, मुख्तलिफ लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए कलाम खुदा, खुदा के बंदे यर्मिया के वसीला से आज हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं आपके सामने यर्मिया नबी की किताब, ये आपको पुराने अहदनामा में मिल जाएगी। मेरे मुसलमान बहन भाई, इस किताब को अगर पढ़ना चाहें तो आपको बहुत से जो मसीही हैं वो फ्री भी ये दे सकते हैं, और ऑनलाइन आप उर्दू में, इंग्लिश में और दीगर जुबानों में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप जिंदगी टीवी के जो हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं और ईमेल्स हैं या टेक्स्ट मैसेजेस के लिए नंबर हैं, आप उन पर हमें राबता कीजिए, और कोशिश होगी कि हमारे जो लोग ये काम करते हैं वो आप तक बाइबल को पहुंचा सके। तो सुनिए कलाम खुदा में क्या लिखा है। खुदा का बंदा लिखता है, ये 9वां बाब है और उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यहां पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है। गौर कीजिए, जब भी खुदा के अंबिया इकराम बात करते थे तो इससे हमें पता चलता है कि ये उनकी जाती बात नहीं है, ये उनका शख्सी कलाम नहीं है। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बाइबल मुकद्दस में से आप तक ये बात पहुंच रही है तो क्या लिखा है, खुदामंद यूं फरमाता है। आसमान से खुदा अपना ज़हन, खुदा अपना ख्याल, खुदा इंसानों की हालत से मुतल्लिका बात पहुंचाता है। आज भी इस सूरत हाल में भी हम देखेंगे, आने वाले इस शो में और आने वाले शोज में हम बात करेंगे कि खुदावंद का कलाम आज की मौजूदा सूरत हाल में क्या बयान करता है और हमारे उलमा और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। तो सुनिए, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और मुझे जानता है कि मैं खुदामंद हूं जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूं, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है, खुदामंद फरमाता है। अब इस हवाले में जो चंद नुकात मैं आज आप तमाम अहबाब तक पहुंचाना चाहता हूं। आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, आप मंदिर में बैठे हुए हैं, आप सिनागोग में बैठे हुए हैं, आप चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, खुदा का बंदा कहता है, खुदामंद फरमाता है कि आपके पास हो सकता है हिकमत और दनाई ऐसी हो कि आप समझते हो कि आप बहुत फहीम और दानिशमंद शख्स हैं, आपके पास दौलत हो सकती है, इख्तियार हो सकता है, और आप समझते हैं कि ये चीजें खुदा की जगह पर आपके लिए उम्मीद, एतमाद और भरोसा है। खुदा कह रहा है, साहिब हिकमत
अपनी हिकमत पर, कवि जो ज़ोरावर हैं, जो इख्तियार में हैं, वो अपने इख्तियार पर, कुव्वत पर, और जिनके पास माल है, वो अपने माल पर फ़ख्र ना करें। इससे मुराद ये है कि वो समझते हैं कि ये चीज़ें अगर मेरे पास हैं, तो मेरी ज़िंदगी की बका के लिए, मेरी सलामती के लिए और मेरी इज़्ज़त के लिए, मेरी नस्लों के लिए काफ़ी हैं। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि जिनके पास माल है, गौर कीजिएगा, जो साहिब हिकमत समझते हैं, उनकी हिकमत की जितनी भी राहें हैं, जितनी भी उनकी कोशिशें हैं, जितनी उनकी तदबीरें हैं, वो सब इस कोरोना वायरस के आगे महदूद हैं, रुक गई हैं, बंद गली की तरह हैं। जिनके पास रुपया पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन हल नहीं मिल रहा। पैसा है, लेकिन उनके पास जिंदगी के लिए हल नहीं है। कोरोना वायरस जिंदगियों को दौलत, हिकमत, इख्तियार होने के बावजूद मौत जिंदगियों को अपनी लपेट में ले रही है। और लिखा है, जो फख्र करे वो इस बात पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और मुझे जानता है। अगर आपने फख्र करना है, आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बहाई हैं, आप कोई भी क्यों नहीं है, यहां पर कलाम खुदा आया है। अगर आप इस किताब के पस मंज़र से वाकिफ हों, यिर्मयाह की किताब के पस मंज़र से वाकिफ हों, यह किताब उम्मतों के लिए नबूवती पैगाम, बनी इसराइल के लिए नबूवती पैगाम, उस दौर के बसने वाले लोगों के लिए खुदा की तरफ से रहनुमाई, आगाही, खबरदारी बख्शती है। इसलिए इस किताब की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आज भी हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है, चूँकि इंसानी सरिश्त, इंसानी हालात आज भी तकरीबन वैसे ही हैं। लोगों को मौत, कहत, खुदा की नाफरमानियां और बर्बादियों का सामना है। तो यहां पर है कि किस बात पर फख्र करना है, किस तरफ आना है, कि खुदा को जानता है और समझता है। आप खुदा को जानने और समझने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? और दुनिया में बहुत से खुदामंद हैं और बहुत से खुदा हैं। तो आज प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से खुदा अपने बंदा यर्मिया या आप अरमिया समझते हैं, उनके वसीला से, किताब के वसीला से आज हम तक ये बात पहुंचा रहा है। क्या आप खुदा को जानते हैं? क्या आप उसको समझते हैं? और खुदा को जानने और समझने के लिए इंसान अपनी हिकमत और दनाई और अपने तरीकों से उसको ना जान सकता है, ना समझ सकता है। खुदा ने खुद अपना तारुफ अपने कलाम के वसीला से कैसे करवाया है, उस कलाम की रोशनी में आप उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। और आगे लिखा है कि वो अपनी शफकत और अदलो इंसाफ और रास्तबाजी को अमल में लाता है। ये उसके दिल की ख्वाहिश है कि मैं खुदामंद हूं। और गौर कीजिए, जो दुनिया में शफकत और अदल, अगर आपने इस बात को जानना है तो जरूर पढ़िए कलाम खुदा में इस्तिस्ना की किताब, तौरेत की किताब है, और उसके बाद आप मत्ती की अंजील में पढ़ लीजिए। लिखा है कि सबसे बड़ा हुक्म, ये जो खुदा अदल और इंसाफ का, मोहब्बत का खुदा है और रास्तबाजी को अमल में लाता है। रास्तबाजी खुदा की रास्तबाजी, जिसमें आप खुदा के तकाजों के मुताबिक पाक हो जाते हैं और दुरुस्त सम्मत में जिंदगी गुजारते हैं, वो उसको अमल में लाता है। और इसके लिए जरूरी है कि ये खुदा जो तमाम दुनिया का खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, क्या आप उससे वाकिफ हैं, उसकी जात को जानते हैं? तो आज हम सब के लिए ये जरूरी है, चूंकि यहां ये भी बताना चाहता हूं, ये क्यों जरूरी है, चूंकि एक दिन पूरी दुनिया को उस खुदा के सामने हाजिर होना है। आप ये कहें नहीं हम मुसलमान हैं, आप ये कहें हम मसीही हैं, आप ये कहें हम हिंदू हैं, आप ये कहें हम पारसी हैं, बहाई हैं, हम लादीन हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि एक दिन आपको इस खुदा का सामना करना है जिसने आपको ये जिंदगी दी है। तो नुक्ता यह है, क्या आप उसको
जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इसी किताब में जब हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं 9वें बाब की तीसरी आयत में, तो यहां पर लिखा है, गौर कीजिएगा 9वें बाब की तीसरी आयत में, और वो अपनी जुबान को नाराजगी की कमान बनाते हैं। तशबीह दी गई है कि वो अपनी जुबान को नाराजगी की कमान बनाते हैं, जुबान से तीर, और उन तीरों से क्या निकला? नाराजगी, नापाकी, खुदा की वो शरीयत, वो अहकाम, वो हदायत जो दी गई हैं, उनके मुखालिफ जिंदगी। आगे पढ़ते हैं, वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं लेकिन रास्ते के लिए नहीं। गौर कीजिएगा, वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं वो लोग जो नाराज हैं, बदी की तरफ हैं, झूठ की तरफ हैं, लालच की तरफ हैं, और गुनाह पर गुनाह करते हुए एहसास से खाली हैं। लिखा है वो जोरावर हो गए हैं। हाँ, वो समझते हैं उनको बरकत मिल रही है, वो कामयाब हो रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि फिर यहां पर आगे खुदा का बंदा कौन सी बात को खोलता है। वो कहता है क्योंकि वो बुराई से बुराई तक बढ़ते जाते हैं और मुझ को नहीं जानते, खुदामंद फरमाता है। गौर कीजिए, सब लोग, आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहें मैं खुदा को जानता हूं, आप कहें मैं खुदा को मानता हूं, आप कहें मैं खुदा का पैरोकार हूं, लेकिन खुदा जब अपने बंदा के वसीला से हम तक बात पहुंचा रहा है, तो वो क्या कह रहा है? क्योंकि वो बुराई से बुराई तक बढ़ते जाते हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, दुनियावी तौर पर जोरावर हो रहे हैं, जो उनको चाहिए वो पा रहे हैं, उनके मंसूबे पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं, वो अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। और इंजील में ये भी लिखा है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए, क्यों? चूंकि उसकी जिंदगी खुदा के साथ नहीं गुजरेगी। और यहां पर खुदा का बंदा वाज़ेह तौर पर कह रहा है, काश आज आप जिस भी मुल्क में बैठे हुए हैं, जिस भी शहर में बैठे हुए हैं, जिस इलाके में बैठे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, वो बुराई से बुराई तक बढ़ते जाते हैं और मुझको नहीं जानते, खुदामंद फरमाता है। तो आज जब आप इस सीजन में से गुजर रहे हैं, तो मैं आज पहला सवाल बड़ी हलीमी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या आप खुदा को जानते हैं? क्या आप उसके कलाम से वाकिफ हैं? खुदा चाहता है कि हम उसको जानने के लिए उसके हुजूर आए। और अगर आप यिर्मयाह के साथ ही यशायाह की किताब है, उसको अज़ाया, हमारे मुसलमान बहन भाई अज़ाया के नाम से जानते हैं, वो 55 बाब में लिखते हैं कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसकी पैरवी करो, उसको ढूंढो। तो आज आगाज में चूंकि जो हमारा मौजू है वो कोरोना वायरस, जवेद अहमद गामदी के बयानात और बाइबल की रोशनी में है। तो तारुफ मैंने इसलिए रखा आपके सामने कि खुदा है जो जिंदगी देता है, खुदा है जिसके पास जिंदगी के बाद जाना है। और जब जवेद गामदी साहब से सवाल किया गया कि जनाब आप हमें बताइए कि कोरोना वायरस क्या है, इसको कैसे समझें, तो आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे बाइबल की रोशनी में और गामदी साहब के बयानात की रोशनी में। और आज मुसलमान मसीही जितने भी लोग हैं, क्योंकि जब सवाल पैदा होते हैं तो फिर उनके जवाब ढूंढना भी ज़रूरी है। और सवालात के जवाबात उलमा से पूछे जाते हैं, कुतुब से ढूंढे जाते हैं, बच्चे वालिदैन के पास आते हैं, बड़े लोग एक दूसरे से पूछते हैं, फिर उलमा से पूछते हैं कि ये जिन हालात का हमें सामना है इनको कैसे समझा जाए। तो आइए ये क्लिप देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लोग जो कुछ करते हैं, यानी जाहिर है कि इस वक्त पूरे आलम में एक नज़म चल रहा है
اس نظم میں قومی ریاستیں ہیں، اس میں سپر پاورز ہیں، ان کے اقدامات ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس عمومی قانون کے تحت بعض اوقات نتیجہ خیز ہو جاتی ہیں، اور وہ نتیجے اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ نتیجے برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کے بارے میں ایک جامع تعبیر اختیار کی تھی کہ یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی تنبیہات ہیں، اللہ کے نذر ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنی ذہانت، اپنی ایجادات، اپنے اکتشافات کو جس درجے اہمیت دے ڈالی تھی، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اب یہ نظم عالم ہمارے ہاتھ میں ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، سائنس کے کمالات سامنے آ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، اس کا نظم میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک معمولی جرثومہ بادشاہوں کے دماغ میں گھس جائے گا جا کے۔ یعنی وہ جو کہانی ہم سنتے تھے کہ ایک مچھر نے نمرود کو ہلاک کر دیا، اس کی ایک تصویر ہم اس وقت عالمی سطح پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو تمرد، سرکشی، اپنے علم پر غیر معمولی اعتماد، اپنے اکتشافات اور اپنی ایجادات کا سہارا لے کر انسان کا خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا داعیہ، اس کو کتنی چوٹ لگی، اس بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس غلطی پر متنبع کیا ہے۔ تو متنبع کرنا، تنبیہ کرنا، عبرت دلانا، سوچنے پہ مجبور کرنا، غفلت سے جگانا، یہ ساری چیزیں موت کرتی ہے۔ یہ موت جو ہمارے گھروں میں روز آتی ہے، یعنی ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بھائی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم بیدار ہوں، ہم جاگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کسی زلزلے کی صورت میں، کسی طوفان کی صورت میں، اسی طریقے سے کسی وبا کی صورت میں اس موت کو زندگی کے مقابلے میں ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پر نمایاں کر دیتے ہیں۔ گویا عالمی سطح پر موت ایک حقیقت کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ ہر شہر میں آپ دیکھتے ہیں روزانہ دسیوں جنازے نکل رہے ہوتے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن موت اس طریقے سے عالمی مسئلہ نہیں بنتی۔ تو اس پروردگار نے اس وقت موت کو عالمی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ مذہب کا بنیادی موضوع ہی موت ہے، یعنی پیغمبر موت کی یاد دہانی کراتے ہیں، ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ ایک دن تم نے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور جب وہاں پہنچو گے تو اس کے سامنے مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا اپنے اعمال کے لیے، اپنے علمی مقدمات کے لیے، اپنے رویوں کے لیے، اپنی سیرت کے لیے، اپنے کردار کے لیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تنبیہ کا موضوع بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جی، جاوید احمد غامدی صاحب سے سوال کیا گیا ہے کہ جناب کرونا وائرس کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہے کہ کرونا وائرس خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ اب تنبیہ میں آگاہی، خبرداری، تاکید، صلاح کا پہلو پایا جاتا ہے کہ جب خدا کی یہ تنبیہ ہے تو پھر اس تنبیہ میں کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ جب ماضی میں خدا نے مختلف ادوار میں مختلف اقوام کو تنبیہ کی تو وہ کس طرح سے تنبیہ ان تک پہنچی؟ لوگوں نے اس تنبیہ کے پہنچنے کے بعد کیا رد عمل کیا، اور اس کے نتیجے میں اگر تنبیہ کو مانا گیا تو پھر کیا ہوا، اور اگر تنبیہ کو رد کیا گیا، نہ مانا گیا تو پھر کیا نتائج ہوئے؟ ہمارا موضوع ہے، شروع میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آنے والے ہفتوں میں بھی اس تعلق سے یا 2 یا 3 شو ہم کریں گے تو آپ واقف ہو سکیں۔ کرونا وائرس تنبیہ ہے، غامدی صاحب نے کہا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کرونا وائرس خدا کی طرف سے
अपनी अपनी जिंदगियों का तजजिया करने का मौका है। तो अपनी जिंदगी का जब तजजिया करेंगे तो उसकी बुनियाद क्या होगी? किन हदायत या तालीमात की रोशनी में आप अपनी जिंदगी का तजजिया करेंगे और फिर उस तजजिए की रोशनी में आप कैसे देखेंगे कि आपकी परख हकीकतन खुदाई परख है? खुदा जो आपकी हालत को आप पर जाहिर कर रहा है, वही है जो खुदा आपको दिखा रहा है? या फिर आप जब परख करेंगे तो आप खुदाई परख की बजाय अगर किसी और तालीम या फलसफा या मकतबा फिक्र की बनाई हुई तालीमात की रोशनी में देखेंगे, तो फिर उस परख में क्या कमियां रह जाएंगी? तीसरी बात गामदी साहब ने जो कही वो ये थी कि कोरोना वायरस, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त वो इस्लामी दुनिया है, मसीही, ये रियासती जो पॉलिटिकल स्टेट्स होती हैं, रियासतें होती हैं, उनको मजहब की बुनियाद पर भी लोग उनमें इम्तियाज करते हैं कि मसीही रियासतें हैं, गैर मसीही हैं, लादीन हैं, या दुनिया का कोई भी खित्ता क्यों नहीं है, इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। तो तीसरी बात जो गामदी साहब ने कही, और जो गामदी साहब के पैरोकार हैं, तकलीद करने वाले हैं, उनके मकतबा फिक्र से अकीदत रखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं कि जो बात उन्होंने की है, तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि लोग घरों में हैं, तो सबसे बड़ी इबादत कौन सी इबादत? सबसे बड़ी इबादत वो इबादत क्या है जो सबसे बड़ी है? उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं जो खुदा की इबादत है? इबादत तो सब लोग करते हैं, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, इबादत करने वाले मिलेंगे, इबादत खाने आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो सबसे बड़ी इबादत है कोरोना वायरस के दरमियान, वो कौन सी है? गामदी साहब ने जवाब दिया है कि ये मौका है सबसे बड़ी इबादत करने का, तो वो खलवत खानों में होगी, शख्सी इबादत होगी, खुदा और इंसान के दरमियान होगी। और वो कहते हैं ये सबसे बड़ी इबादत है जिसको शायद दुनिया भूल चुकी थी या भूल चुकी है। तो हम ये जो तीनों जवाब, जावेद अहमद गामदी साहब, बहुत मोहतरम, बहुत बड़ा नाम इस्लामी दुनिया में, हम देखेंगे बाइबल की रोशनी में और इस्लामी तालीम की रोशनी में कि ये इबादत, इसमें क्या कुछ पाया जाता है, और हम इस इबादत की परख कैसे कर सकेंगे कि क्या मैं वो इबादत कर भी रहा हूं या नहीं, और क्या मेरी इबादत मकबूल भी है या नहीं, और कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेरी जो इबादत है इसका अजर मुझे मिलेगा या फक्त इबादतें ही हैं, फराइज ही हैं। तो सबसे बड़ी इबादत गामदी साहब कह रहे हैं, कोई आम शख्स भी नहीं कह रहा, कि कोरोना वायरस को आप शायद देख रहे हैं कि ये एक वबा है, बीमारी है, और ये सच है, लेकिन कोरोना वायरस आपके लिए एक इलाही तंबी है, आपके लिए अपनी जिंदगी का तज्जिया करने का मौका है, आपके लिए सबसे बड़ी इबादत करने का मौका है। तो आइए हम बाइबल की रोशनी में, इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन पर गौर करेंगे। अब अगर ये तंबीह है, तो फिर तंबीह का खुदाई तरीका मसीहत में और इस्लाम में क्या है? गामदी साहब कह रहे हैं ये तंबीह है, तो ठीक है, हम देख लेते हैं कि अगर ये तंबीह है
तो फिर खुदा ने तंबीह करने के लिए कौन सा तरीका मुहैया किया, माजी में और आज हाल में और फिर आने वाली नस्लों के लिए भी। तो जब हम जाते हैं सूरह अल इनाम में और हम पढ़ते हैं अब्रानियों के खत में, तो सूरह अल इमरान उसकी 19वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा का तंबीह करने का तरीका, तो यहां पर लिखा है ये कुरान बजरिया वही भेजा जिस जिस तक पहुंचे मुतनब्बे करो, तंबीह करो। और अगर आप अब्रानियों का खत, पहले भी मैंने काफी दफा ये हवाला पढ़ा है, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूं, ये सूरह अल इनाम 19वीं आयत और फिर सूरह अल बकरा उसकी 136वीं आयत, वही भेजी क्या करे, मुतनब्बे करे, तंबीह करे, लोग तंबीह पाएं, आगाही हो जाए, खबरदारी हो जाए, ताकीद हो जाए, उन तक इस्लाह के लिए जो खुदा का पैगाम है वो पहुंच जाए। तो वही भेजी, और वही क्या सिर्फ फरमाने कुरान ही वही है? कुरान इसके बारे में क्या कहता है? फरमाने कुरान सूरह अल बकरा 136, उसने वही भेजी, पढ़ लीजिए, नूह को, खुदा के अजीम बंदे हैं, पैगंबर हैं, खुदा के अजीम बंदे नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, वही क्या है? खुदा का पैगाम। और अगर आप मुख्तलिफ जुबानों में इसको पढ़ेंगे तो इसको दम भी कहा गया है, छिपी हुई बात भी कहा गया है, राज की बात भी कहा गया है, मख्फी बात भी कहा गया है। तो वही भेजी क्या करे, मुतनब्बे करे, जिस तक पहुंचे। तो माजी में मैं बता रहा हूं कि खुदा का तरीकाकार माजी में क्या रहा। और सूरह अल बकरा 136 किन किन लोगों के वसीला से। और जब हम अब्रानियों के खत में आते हैं, तो चूंकि ये तंबीह है, तो तंबीह के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, ताकि मेरे मुसलमान बहन भाई, आजकल कुछ लोगों ने ये भी तालीम देनी शुरू की हुई है कि जब फरमाने कुरान आपके पास है तो फिर आपको बाकी कुतब पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन तंबीह जो है वो तो मुख्तलिफ, वही जब अंबिया इकराम पर भेजी गई तो उसमें तंबीह पाई जाती है। और अभी हम देख लेते हैं, यहां पर पहला बाब है, और ये मैं आपको सामने इसलिए सारे हवाला जात रख रहा हूं, अभी और भी हवाला जात आपके सामने रखूंगा कि आप जान सके अगर आप मुसलमान हैं। चूंकि गामदी साहब ने कहा यह तंबीह है, तो किन के लिए तंबीह है? वो ये कह रहे हैं सारी नस्ल इंसानी के लिए तंबीह है। तो नस्ल इंसानी में माजी की अकवाम, मौजूदा दौर की अकवाम, आने वाले जमानों की अकवाम शामिल है। तो इसको जो महदूद ना कीजिए। अभी मैं आपके सामने कुछ और हवाला जात भी रखता हूं, ये पढ़ लेते हैं पहले। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा व हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके, गौर कीजिएगा, अगर आपने तंबीह के बारे में तहकीक करनी है, आज के आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत से असातिज़ा हैं, बहुत से उलमा हैं, बहुत से स्कॉलर्स हैं, बहुत से मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, इस्लाम में हैं, मसीहत में हैं, हिंदुइज़्म में हैं, सिखिज़्म में हैं, दीगर मज़ाहब में हैं। अगर ये वायरस खुदा की तंबीह है, तो फिर आपको खुदा के कलाम में आना पड़ेगा कि माजी के लिए, आज के लिए, आने वाले जमानों के लिए लिखा है। तरह बतरा, हिस्सा ब हिस्सा, इससे मुराद है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह से उसने
कलाम किया, तंबीह पहुंचाई। फरमान कुरान मुतनब्बे करे। कैसे किया, कैसे कर रहा है, कैसे करेगा? इस जमाना के आखिर में गौर कीजिएगा, इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। और यहां पर मैं बात बता दूं, ईसा मसीह को हम जिनसी तौर पर बेटा नहीं कहते हैं, ये बार बार कह चुके हैं। ये ना किसी मसीही का ईमान था, ना है और ना होगा। इस पर हमारा बहुत से प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं, आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है, हम सफ़ात और उसके इख्तियार और कलमत उल्लाह होने की वजह से उसे खुदा का बेटा कहते हैं। और इस पर हमारे शोज है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं तंबीह। हमने देखा मुतनब्बे कर दे, किताबें, तालीमात, तंबीह पहुंची। लिखा है आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, और उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अब यहां पर जो मैं नुक्ता आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं आज, वो ये है, अकीदा इस्लाम के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर आए। 1,24,000 पैगंबर आए। अब उनमें से तमाम की तारीख पैदाइश और तारीख वफात, गौर कीजिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूं। तमाम मेरे बहन भाई गौर कीजिएगा, अंबिया के वसीला से कलाम किया, आखिर में कलमतुल्लाह यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया। तमाम अंबिया इकराम आए और उन्होंने वफात पाई। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं सूरह अल इनाम। अगर किसी को एतराज हो तो मैं हवाला जात मेरे पास होते हैं, लाइव भी होते हैं, रिकॉर्डेड भी है। किसी भी वक्त ईमेल कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं और खुशी होती है। दूसरा चैप्टर है कुरान का, 33वीं आयत है, और फिर तीसरा चैप्टर है उसकी 144 आयत है, और इसके साथ छठा चैप्टर है और उसकी 162 है, और फिर 19वां चैप्टर है फरमान कुरान और उसकी 15वीं आयत है। तमाम अंबिया आए और वो वफात पा गए। मुतनब्बे करने वाले भेजे, तंबीह करने वाले भेजे। याद रखिए, गामदी साहब कह रहे हैं ये खुदा की तंबीह है, तंबीह करने का तरीका वही। और यहां पर हम देख रहे हैं तमाम अंबिया वफात पा गए और सिर्फ एक ही वक्त जिंदा है, और उसका नाम यीशु मसीह, जिसको आप ईसा मसीह कहते हैं, वो जिंदा हैं। तो तंबीह करने का तरीका, खुदा की वही, खुदा की किताबें। तो जब गामदी साहब कह रहे हैं तंबीह की गई है, ये वही है, खुदा की किताबें हैं, तो मैं आपके सामने चंद और आयत भी रख देता हूं। और इस तरफ जाने से पहले मैं एक आयत बहुत ज़रूरी आपसे कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस पर भी गौर करते रहिए। ये फरमान कुरान चैप्टर 41 और उसकी 43 आयत है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, चूंकि अगर आपने तंबीह के लिए खुदा किस तरह से तंबीह करता था उसकी मुकम्मल तस्वीर देखनी है, तो फिर आपको बाइबल मुकद्दस की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ, फरमान कुरान सुनिए और खुद फिर इस पर गौर कीजिए। चैप्टर है 41, लिख लीजिए सब लोग। और इस पर भी मैं मौलवी हजरात से दरखास्त करूंगा कि कभी इस पर भी बात किया करें। सिर्फ 2 लोग हैं इस्लाम में जो इस पर बात करते हैं, उनमें से एक जावेद अहमद गामदी साहब हैं और दूसरे मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं। ये दोनों अहबाब ये बातें वाजे करते हैं। अब लिखी हुई बात को अगर कोई नहीं मानता तो मैं ये चैलेंज करना चाहता हूं आज आपको, जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं। मैं फरमान कुरान आपके सामने रख रहा हूं,
अगर कोरोना वायरस खुदा की तंबीह है, खुदा की तंबीह है, तो तंबीह का पस मंजर, तंबीह, अभी मैं बात कर रहा हूं कि तंबीह है तो वो आती कैसे थी? वही मुतनब्बे कर दो, तंबीह कर दो। तो यहां पर लिखा है, गौर कीजिए, ऐ नबी, तुमसे जो कुछ कहा जा रहा है इसमें से कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई। चैप्टर 41 है और उसकी 43वीं आयत है। अब मैं आपके सामने सूरह अल निसा और उसकी 63, 163, 164 रख रहा हूं। वहां पर लिखा है कि कुछ बातें, ये मैं उस आयत को पढ़ नहीं रहा, लेकिन जो उसमें लिखा है वो बता रहा हूं। जो लिखा है वो क्या है कि कुछ बातें हैं जो आप तक पहुंचाई गई हैं और कुछ बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचाई गई। दो आयत तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई सूरह अल निसा 164, 163 तंबीह की बात कर रहे हैं। अगर कोरोना वायरस तंबीह है तो फिर खुदा ने कैसे ये तंबीह की, आज वो कैसे कर रहा है, आने वाले जमानों में कैसे करेगा? तो ये दो आयत पढ़िए कि जो तुमसे आने वाले रसूलों से ना कही गई। तो अगर तंबीह है, कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई। तो पहले रसूलों को कही गई, कोई बात भी ऐसी नहीं। तो आप खुद पढ़िए 41, 43 अरबी में, उर्दू में पढ़िए। कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले आने वाले रसूलों को ना कही गई हो। तो लोगों को माजी में ऐसे तजर्बात हुए और फिर सूरह अल-निसा और 163, 164 कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ नहीं बताई गई। और अगर आप इसी ताल्लुक से चंद और आयात में आपको बताना चाहता हूं, गौर कीजिएगा, चूंकि कुछ लोगों ने ये प्रोपोगंडा कर रखा है कि बाइबल अब नहीं पढ़नी, बाइबल नहीं पढ़नी, बाइबल नहीं पढ़नी, तो मैं आपको जो चंद आयात हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। ये सूरह अल-निसा जो मैंने बयान किया आपके सामने 164, कुछ नबियों के बारे में हमने तुम्हें बताया और कुछ के बारे में नहीं बताया। तो कुछ के बारे में बताया, कुछ के बारे में नहीं बताया। तो ये फरमाने कुरान है। आप किसी से कहें जी ये लिखा हुआ है, तो मैंने आपके सामने 41, 43 भी रखी। तो मैं ये बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि सब बातें नहीं बयान की गई। तो ये मैं नहीं कह रहा, ना मुझे कुछ कहने की जरूरत है, मैं तो एक तालिब इल्म हूं। तो मैं ये दो आयात तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों के सामने रख रहा हूं, गौर कीजिएगा। और फिर हम अल निसा की ही 165 भी देख सकते हैं। और इन सब को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, खौफ सुनाने वाले पैगंबर बनाकर इसलिए भेजा ताकि लोगों के पास अल्लाह के सामने उन पैगंबरों के बाद कोई उज़्र बाकी ना रहे। तो यहां पर जो मैं बात तंबीह के ताल्लुक से बताना चाहता हूं, वही के जरिए से खुदा ने तंबीह की, आगाही की, असलाह की बात बताई, बेहतरी की बात बताई। खुदा जो चाहता था वो लोगों तक पहुंचाया। और लिखा है, पैगंबर बनाकर इसलिए भेजा ताकि लोगों के पास अल्लाह के सामने उन पैगंबरों के बाद कोई उज़्र बाकी ना रहे। तो अब मैं आपको फिर यहां पर बताना चाहता हूं कि पैगंबर आए, वो चले गए। आज भी 1,24,000 में से एक ही जिंदा हैं और उनका नाम यीशु मसीह नासरी है। और अगर आप तो आज भी तंबीह के ताल्लुक से जानना चाहते हैं,
गामदी साहब कह रहे हैं तंबीह है। तो अभी तंबीह के बारे में और बातें भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए ये आयात आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप इन बातों से वाकिफ हो जाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब तो हमारे पास एक किताब है और उस किताब के बाद दूसरी किताबें नहीं हैं, तो ये मैंने आयात आपके सामने रख दी हैं कि किस तरह से आपको आज सोचना है, बाइबल की तरफ आने की ज़रूरत है। आयात मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम और बातें करें, मैं तंबीह के ताल्लुक से आपके साथ बात कर रहा हूँ कि खुदा का तरीका वही, और वही के वसीला से जो पैगाम पहुंचा, तो उसमें कितनी किताबें हैं जिनको आज भी हमारे मुसलमान बहन भाई इल्हामी किताबें मानते हैं, और कुछ कहते हैं जी ये मनसूख हो गई हैं। हालांकि एक भी आयत ऐसी नहीं है कुरान में जिसमें कहा गया हो कि ये किताबें बिल्कुल मनसूख कर दी गई हैं, ख़त्म हो गई हैं दुनिया से। जबकि सूरह अल इनाम 115, सूरह यूनुस 64 लिखा है कि खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। ये आप के लिए बहुत अहम बातें हैं जो ये लोग कहते हैं। तो आइए मैं आपको अभी एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ। ये हदीस है अहादीस कुदसिया से, और ये अहादीस कुदसिया सफ़ा नंबर 214 और हदीस नंबर 11 है। और यहाँ पर अबलीस के बारे में है कि वो जब बात कर रहा है किताबों की, तो अब मैं आपके सामने ये हदीस रखता हूँ और सब लोग पढ़ लें, ताकि जब अभी हम तंबीह की तरफ आ रहे हैं, आगे और बातें करेंगे, तो फिर आपको समझ हो इस बात की। यहाँ पर इस हदीस में हदीस नंबर 11 है। किताब का नाम अहादीस कुदसिया है और रावी हैं इसके अब्दुल्ला बिन अब्बास। जो भी लोग पढ़ना चाहे अहादीस कुदसिया में पढ़िए। अबलीस खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ, ए रब तूने आदम को जमीन पर उतारा है। हदीस सुनिए गौर से। तू जानता है कि अब इनके लिए किताब भेजी जाएगी। अहादीस कुदसिया हदीस नंबर 11 सफ़ा नंबर 214। अब उनके लिए किताब भेजी जाएगी, वही तंबीह के लिए। तो आज भी ये किताबें मौजूद हैं जो मैंने शुरू में बात की और अभी भी कर रहा हूं, और फिर आपको ये बता रहा हूं कि ये किताबें जो तंबीह हैं, जो वही हैं, वो मौजूद हैं। तो देखिए, उनके लिए किताब भेजी जाएगी और रसूल भेजे जाएंगे। अबरानियों पहला बाब मैंने आपके सामने रखा। रसूल भेजे जाएंगे, रसूल आए वफात पा गए, एक ही जिंदा हैं। आगे देखिए, तो उनकी किताबें क्या होंगी, रसूल क्या होंगे। खुदा ने फरमाया उनके लिए फरिश्ते भेजूंगा और उनमें से ही औलादे आदम से नबी पैदा करूंगा, और किताबें उनकी गौर कीजिएगा, तौरेत, अंजील, जबूर, फुरकान होंगी। फुरकान फर्क पैदा करने वाली, तंबीह से भरी हुई कुतुब। और उनकी किताबें तौरेत, अंजील, जबूर और फुरकान होंगी। अबलीस ने अर्ज किया मेरी किताब क्या होगी। इरशाद हुआ तेरा लिखना गोदना होगा और तेरा बढ़ना अशआर। और फिर आगे मुख्तलिफ बातें इस ताल्लुक से हैं। तो गौर कीजिएगा, फिर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं अहादीस कुदसिया सफ़ा नंबर 214, रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास, हदीस नंबर 11। और शैतान पूछ रहा है, और खुदा ने फरमाया उनके लिए फरिश्ते भेजूंगा और उनमें से ही औलाद आदम से नबी पैदा करूंगा, और किताबें उनकी तौरेत, अंजील, जबूर, फुरकान होंगी। अब खुदा की तंबीह इन कुतुब में किस तरह से लोगों तक आई, अब हम इस पर बात करते हैं।
اور اس کی پوری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے یہ تنبیہ ہم تک پہنچی۔ اور اب وحی کے تعلق سے، تنبیہ کے تعلق سے آپ کے سامنے سورہ 67 ہے، سورہ 67 اور اس کی دوسری آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، شاید ہمارے علماء اس پر بات نہیں کرتے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا جب موقع دیتا ہے اور دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اپنی باتوں کو ہم تک پہنچاتا ہے، کھولتا ہے۔ اور 67 چیپٹر ہے، فرمان قرآن دوسری آیت ہے، لکھا ہے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ان کو آزمائے۔ موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اس وقت وبائیں کیا کر رہی ہیں؟ لوگ زندہ ہیں یا مر رہے ہیں؟ تو لکھا ہے آزمائش کرے، امتحان کرے، پرکھے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اسی صورت میں نفس انسانی پر بدی اور پرہیزگاری کو الہام کیا۔ غور کیجئے گا، تمام انسان، یہاں پر کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی غور کریں۔ بعض اوقات لوگوں نے بس اپنی تعلیم کے مطابق، اپنے مکتبہ فکر کے مطابق باتوں کو محدود ایک دائرے میں رکھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غور کیجئے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی کتاب ہے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں، یہ سورہ 67 ہے اور لکھا ہے کہ نفس انسانی نفس پر بدی، غور کیجئے، بدی برائی جو نیکی کے خلاف ہے، اور پرہیزگاری کو کیا کیا؟ الہام کر دیا ہے۔ انسان کے اندر خدا نے ایک شعور رکھا ہے الہام میں سے۔ تو یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الہام صرف کتابوں میں ہے، اب اس کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ رومیوں کا خط ہے، وہاں پر میں آپ کو لے چلتا ہوں اور اس بات کی آپ کو بہت واضح طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ چونکہ ہم تک تنبیہ ہے، تنبیہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ الہام۔ تو یہاں پر پہلے باب میں ہی ہمیں مل جاتا ہے، اگر آپ پہلے باب میں آ جائیں تو اس میں لکھا ہے 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس بات کی آپ کو سورہ 67 اور اس کی دوسری آیت ہے اور پھر اس کی 8ویں اور 9ویں آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تعلق سے غور کیجئے گا بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے اس نے نفس انسانی پر بدی اور پرہیزگاری کو الہام کیا۔ انسان کا شعور جو خدا نے بنایا ہے اس کے اندر یہ احساس رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اگر آپ 19ویں آیت سے 18ویں آیت سے 19ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ غور کریں، ذرا غور کریں سب لوگ، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں بھٹک گیا، اس نے مجھے الجھا دیا، اس نے مجھے الجھا دیا، اس لیے میں خدا کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کے باطن کے اندر یہ شعور خدا نے رکھ دیا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اور یہ
इंसान के शऊर के अंदर, इंसान के अंदर, उसके नफ्स में उसका जो मरकज है, जिसको हम ज़मीर कहते हैं, रखा हुआ है। और अभी अगर हम इस शऊर का इस्तेमाल नहीं करते या ये मुर्दा हो चुका है, तो फिर आज ज़रूरत है कि हम देखें कि ये नया कहाँ से होगा। और ये मैं नुक्ता इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस दौर में हमारे लिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसी बात को आगे ले जाएं तो फिर लिखा है कि खुदा ने इल्हाम जो इंसानों तक पहुंचाया है, वो उसने फरिश्तों के वसीला से पहुंचाया, उसने अंबिया इकराम के वसीला से पहुंचाया, वो ख्वाबों के जरिया के, रोया के जरिया से भी हमसे बात करता है। तो अगर हम इस तंबीह की तारीख को जानना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, जो हम अगले शो में बात करेंगे, कि अंबिया इकराम को तंबीह कैसे की गई, मुख्तलिफ अक़वाम को तंबीह कैसे की गई। अगर ये हमारे लिए तंबीह है आज, तो फिर आज हमारे लिए इस तंबीह में क्या क्या पाया जाता है। क्या हम खुदा के इल्हाम को समझने के लिए, खुदा की तालीमात को समझने के लिए, और जो बातें इस शो के वसीला से वो हम पर खोलने जा रहा है, उनको समझने के लिए, जानने के लिए तैयार हैं? प्यारे बहनों और भाइयों, इसके लिए हम अगले शो में बात करेंगे कि अंबिया को जब तंबीह की गई तो उसमें कौन सी बातें शामिल थीं, जब इकवाम को तंबीह की गई तो उनमें कौन सी बातें शामिल थीं, जब शख्सी तौर पर तंबीह की गई तो उसमें कौन सी बातें शामिल थीं। इस शो के वसीला से मेरा ईमान है कि खुदावंद बहुत से लोगों के साथ बोला है, उसने हम तक अपना कलाम पहुंचाया है। और ये जो 2 या 3 शो मैंने शुरू में अर्ज किया था, इसमें हम तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे। अंबिया को तंबीह कैसे की गई, क्या आप जानना चाहते हैं? अक़वाम को तंबीह कैसे की गई, क्या आप जानना चाहते हैं? शख्सी तौर पर इंसानों को तंबीह कैसे की गई, क्या आप जानना चाहते हैं? उस तंबीह में क्या पाया जाता था, ये हम कलाम खुदा की रोशनी में, गामदी साहब कहते हैं ये तंबीह है। बाइबल की रोशनी में उस तंबीह में क्या क्या पाया जाता है। अंबिया को कैसे तंबीह की गई, फिर कह रहा हूं अक़वाम को कैसे तंबीह की गई, अशखास को कैसे तंबीह की गई, और जिन्होंने इसको रद्द किया उनका क्या अंजाम हुआ, जिन्होंने इस तंबीह को माना, बदलने के लिए तैयार हुए। हम तारीख की रोशनी में, इल्हाम की रोशनी में इस पर बात करेंगे। मैं खुदामंद का शुक्रगुजार हूं जिसने ये मौका आज हमें दिया, और आने वाले तीनों शो जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए जो तंबीह है आप उससे कहीं आगाह हुए बगैर ना रह जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले शो में यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे, ताकि खुदा इस अनप्रडिक्टेबल सीजन में हमारी जिंदगी के मकसद को हम पर बयां करता रहे। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान धन्यवाद।